Good morning, everyone. I am Akshata, your host for today. I welcome each and everyone for today's Sadgun Sang. This is our 294th virtual webinar. Topic for today: how to ensure smooth transfer of cash and assets to legal hires, which shall be taken by Maya Chahal. Today's session will cover the following points are: maintain a clear record of all your financial assets and liabilities. Plan today to protect your families tomorrow. Proper planning today prevents dispute tomorrow. And followed by question and answer session. Agenda for today's Sadgun Sang meet: virtual evaluation by Dr. Sundar Kataria, evoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Maya Chahal, question and answer session. About Sadgun Sang, conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness level of industry. Sadgun Sang is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. Brief introduction of Dr. Sundar Kataria, sir, Chairman and Managing Director of International Certification Private Limited, International Certification Services Private Limited, Mechanical Engineer AMIE, Honorary Doctorate Business Management, experience in nuclear RAPP. He started his career in building India's first nuclear power plant at Rawat Bhata, Kota, Rajasthan. Oil and gas, EIL. He contributed in developing India's first oil and gas field at Bombay High since its inception. DNV. He was head of industry of offshore development with DNV for 2 decades. ICS. He is the founder of First Indian Conformity Assessment and Inception body known as International Certification Services Private Limited, which is a provider of a total quality solutions under single umbrella with a wide spectrum of services. Lifetime Achievement Award of NEC Corcon, received several national and international awards. Now I request Dr. Sundar Kataria to virtually inaugurate today's session. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of Gayatri Mantra.
Introduction of the keynote speaker. Maya ma'am designation Advocate and Legal Advisor MS Sam and Company since 2009. Qualification 1-year diploma in basic computer education. Bachelor of Laws LLB MDU Rohtak. Master of Laws LLM Sridhar University Pilani. BA in Economics and Military Science KUK Kurukshetra. Experience over 17 years of experience in legal advisory and litigation. Practicing advocate at Gurugram District Court since 2009. Expertise in legal consultation, litigation, legal documentation, contract review, and dispute resolution. 4 years of experience as an intern with Sampar Foundation, contributing to legal and social welfare in activities. Strong knowledge of Indian legal procedure and regulatory compliance. Welcome, Maya ma'am. Hello. Good morning. Maya ma'am, am I audible? Hello. Hello. Yeah. Audible. Good morning, everyone. Namaste. Good morning, Maya ma'am. Over to you. Thank you. आज का टॉपिक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है बट बहुत जरूरी है ये. वी हाउ टू इंश्योर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ कैश एंड एसेट टू लीगल हेयर. या सिंपल भाषा में कह सके तो भी हम हैं और हमारे बाद हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे एसेट्स का, हमारे बैंक अकाउंट का क्या होगा, इनके बारे में कैसे हमें करना है. और आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है. तो मेरा नाम माया चैल है. मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ 17 साल से. और साम एंड कंपनी की लीगल मैं एडवाइजर भी हूँ. मैं इसमें आपके टॉपिक में 30 से 35 मिनट का टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे. और बहुत मतलब ले मैन की तरह लीगल भाषा को प्रॉपरली यूज ना करते हुए, ताकि सबको अच्छे से इजीली समझ पाए, उसी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगी. तो ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए. क्योंकि सबसे पहले मैंने मैम को भी बोला था भी मैं इसमें बताऊंगी, विल के बारे में बताऊंगी आज. और मतलब सक्सेशन के बारे में बताऊंगी. और अपने अकाउंट को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे वो चीजें करते हैं, उन सब के बारे में बताऊंगी. क्योंकि हम जानते हैं कि एफडी है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड बनाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी है, उस चीज के बारे में 90% लोग एग्जिट प्लान को भूल जाते हैं. अगर हम कल को ना रहें तो हमारी फैमिली को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी. क्योंकि अगर हम टीपीए में जाएं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वो काफी वास्ट है. उसको मतलब 10 से 20 मिनट में हम नहीं बता सकते, लेकिन हम बेसिक नॉलेज हर आदमी को बता सकते हैं, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए. आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें, ताकि आपकी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो अगर इसमें मान लो बैंक में है कुछ, बैंक में अकाउंट फ्रीज हो जाता है, प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हो जाते हैं, फिर काफी परेशान हो जाता है बंदा भी. कोर्ट के चक्कर इधर से उधर लगाता रहता है, उसका कभी लीगल हेड का सर्टिफिकेट नहीं बनता, कभी अगर आफ्टर मतलब सक्सेशन में आते तो सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं बनता. 2 से 3 साल निकल जाते हैं, प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी, आपका कोई यूज नहीं हो रहा उसका एसेट का. और फैमिली के डिस्प्यूट अलग से होने लग जाते हैं उस चीज में. और सबसे बड़ी बात, ये सब अवॉइड कर देते हैं हम भी. चलो कोई बात नहीं, हम हैं, तब तक हैं, देखा देखेंगे बाद में कैसे क्या होगा. लेकिन ये सब चीजें है ना, बाद में जो पीछे हमारी फैमिली के मेंबर लीगल एएस बचते हैं, उनको बड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है. क्योंकि जल्दी से कोई आपका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. तो इसके मतलब पहले मतलब जो इम्पोर्टेंट है मतलब एक सक्सेशन के थ्रू, या आप मतलब बिल्कुल
बेसिक नॉलेज लगाओ तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका फ्लैट, आपका घर, आपकी जमीन है तो उसका क्या करना चाहिए आपको। तो इसमें है ना, पहले आप अपनी विल बनवा सकते हो। और विल बनवा सकते हो, मतलब चाहे फ्लैट हो, चाहे एफडी हो, या कोई गोल्ड हो, और उसमें क्या जरूरी है विल में, मतलब क्या क्या करना चाहिए आपको, बेसिक ये है कि विल को आप बनवा के रजिस्टर करवा सकते हो। विल वर्बली कभी भी नहीं चलेगी। अगर विल बनवाते हो तो आपके मतलब वहां पे रजिस्टर करवाओ, वहां पे 2 विटनेस की आपकी जरूरत होगी और साइन वगैरह होंगे। विल को आप रख सकते हो, ये अपने जिसके थ्रू करवाए आप, जिसके नाम करवाए उसको आप बता भी सकते हो कि ये विल है और इसमें कैसे क्या करना है, तो वो आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट बेस्ट है। रजिस्ट्रेशन विल को कोर्ट में चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया विल को, तो उस विल को कोर्ट में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कि विल आपके पास है, फिर कहीं नहीं नहीं ये तो मेरा था, ये इसका नहीं था, तो लेकिन वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते दूसरा बंदा। कॉमन गलती लोग सोचते हैं मेरे बच्चे तो हैं ही, विल की क्या जरूरत है। और भाई, बिना विल के हिंदू सक्सेशन एक्ट लग जाता है, उसमें वाइफ बेटे बेटी सबको इक्वल हिस्सा है। आप चाहते हो बेटी को फ्लैट दो, लेकिन कानून के हिसाब से बेटा भी क्लेम कर लेगा, झगड़ा तो पक्का ही है उन चीजों में। इसलिए अगर विल बनाओगे तो विल में पर्टिकुलर बंदे का नाम, इसको मैं ये चीज दे रहा हूँ, इसका इतना हिस्सा है, इसको मैं ये दे चुका हूँ, वो आप मेंशन कर सकते हो। भी मान लो, और उसको अगर आपने विल आज बनवा ली, आज बनवा के रख दिया और 10 साल तक मतलब सोच रहे हो आप हो अलाइव हो, तो विल का मैंडेटरी पॉइंट ये है कि हर 5 साल में उस विल को आप अपडेट करो। अपडेट करोगे और उसमें मतलब आपका नॉमिनेशन कौन है, अगर आपका कैश फाइनेंशियल असेस्ट है, बैंक की एफडी, एमएफ शेयर, इंश्योरेंस। नॉमिनेशन का मतलब भी बैंक को बोलो अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पैसे इस व्यक्ति को दे देना, इससे पैसा जल्दी मिल जाता है। बैंक वेट नहीं करता आप लोग भी नहीं मैं इसको नहीं दूंगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग सोचते हैं कि नॉमिनी मालिक बन गया। ये बहुत सारे मतलब केसेस में आता है और मैंने भी देखा है, हम भी कोर्ट में हैंडल करते हैं। जैसे नॉमिनी करवा दिया बैंक अकाउंट में ही और वो पैसा उसके बाद अगर बैंक उसको दे भी देता है, नॉमिनी का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है भी वो आपके पैसे का ओनर है या ये वही मालिक है या पूरा 100% राइट उसको मिल गया। अगर आप चले जाते हो तो वो आपको लीगल एज में या सक्सेसर के थ्रू वो पैसा उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होएगा जो उसके लीगली राइट रखते हैं। आप नॉमिनी तो किसी को भी बना सकते हो कि ये कंपनी है मैं चला रहा हूँ, मेरे कुछ हो जाता है तो इस कंपनी को ही हैंडल करेगा, इस मीन्स वो कंपनी उसके नाम नहीं हो जाती, वो मकान उसके नाम नहीं हो जाता, सिर्फ नॉमिनी है। और जैसे मान लो एफडी में 2 बेटों को नॉमिनी बनाया, पापा के जाने के बाद 20 लाख रुपए ही मान लिया, अगर विल में लिखा 10 लाख बेटे को भी देने हैं बेटी को भी देनी है, तो नॉमिनी को देने ही पड़ेंगे, वो उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि आपने विल में आपकी चीजों को मेंशन किया हुआ है। भी नॉमिनी है और विल में आपने लिखा भी मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरा बैंक बैलेंस है, जो मेरी एफडी है, जो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका शेयर वन वन हाफ होना चाहिए, तो होगा वो कोई भी मतलब आपका एसेट हो, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी आपका कैश हो। तो इसमें मतलब एक तो ये हो गया। और फिर ये जैसे मान लो आपने बिल बनवा ली, एक होता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड और बिल में क्या डिफरेंस है। बिल में ये होता है कि आपने आपका कंट्रोल मतलब विल करवा दी, आपका कंट्रोल आपके पास है। और गिफ्ट डीड में ये होता है भी आपने अपना कंट्रोल छोड़ दिया पूरा। और गिफ्ट डीड मतलब टीपीएस सेक्शन में 122 में होता है, गिफ्ट डीड में अगर आप गिफ्ट डीड करवाते हो और आप उनको एक मतलब टाइम लिमिट देते हो कि ठीक है मैं गिफ्ट डीड देता हूँ, मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी का देता हूँ, मेरी 20 एकड़ जमीन इसको, 20 एकड़ जमीन इसको, ये घर ये इसको, ये इस घर उसको। और गिफ्ट डीड में आपने अपना कंट्रोल पूरा नहीं रहता क्योंकि उसमें कोर्ट एक आपको टाइम देता है कि 6 महीने या 1 साल तक मैं आपको ये प्रॉपर्टी देता हूँ। मान लो एग्रीकल्चर लैंड है, फादर ने बोला भी मैं 20 एकड़ जमीन दे रहा हूँ भाई तुम्हें इस पे खेती करो और अपना काम चलाओ। जिसको दे रहे हैं वो सोच रहा है भी नहीं मैं इसको बेच दूं,
तो वो 1 साल के अंदर का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर आप बेचोगे तो वो अपनी गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकता है। भी मैं नहीं, कैंसिल हो जाएगी, वहां पे वो नहीं बेचने देगा, वापिस उसी बंदे के नाम आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसने उसको गिफ्ट डीड दिया था। इसका भी गिफ्ट डीड का ये नहीं कि गिफ्ट डीड देने के बाद में पूरा मतलब कंट्रोल तो अगले बंदे के पास जाता है, लेकिन एक आपका टाइम लिमिट होता है और उसमें आप उसको वापिस भी कर सकते हो। अभी ये जो 2024 में केस आया हुआ था गिफ्ट डीड का ही, गिफ्ट डीड का केस आया था, तो तमिलनाडु का केस है वो। वहां पे उसने एक लैंड को दिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसने बोला भी ठीक है इस पे आप खादी की कंपनी लगा सकते हो। अगर आप खादी की कंपनी लगाओगे तो ही मैं मेरी प्रॉपर्टी को ये लैंड आपको दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा इस चीज को। तो उन्होंने कहा ठीक है हम खादी की कंपनी लगाएंगे। तो जैसे जैसे वो आपकी कंपनी नहीं चल रही थी, उन्होंने सोचा भी चलो मैं इसको तोड़ के यहाँ पे फ्लैट वगैरह बना दूं। तो वहां पे जजमेंट में उन्होंने फाइल किया। फाइल किया तो उन्होंने साफ साफ कहा क्योंकि आपके गिफ्ट डीड में ये लिखा हुआ है, अगर आप इस प्रॉपर्टी पर केवल खादी की कंपनी लगा रहे हो तभी आपको गिफ्ट मिल रहा है, अदरवाइज आपका ये कैंसिल हो रहा है। तो वहां पे वो गिफ्ट आपका रिवोक हो सकता है, वो किसी से भी रिलेटेड, आपने प्रॉपर्टी दी है, आपने पैसे दिए हैं, मैं स्टडी के लिए दे रहा हूँ, मैं बिजनेस के लिए दे रहा हूँ और आप उसको खराब कर रहे हो, तो वो गिफ्ट में क्लेम करके आप वापस ले सकते हो उस चीज को। और इसमें सबसे जैसे विल है, गिफ्ट डीड है, विल में सबसे बेस्ट एक ये है बोनस पॉइंट की हस्बैंड वाइफ के लिए जो ज्वाइंट अकाउंट विद सर्वाइवरशिप बेस्ट है। अगर आपने मतलब हस्बैंड वाइफ है उन्होंने अकाउंट ज्वाइंट खुलवाया हुआ है तो वो सर्वाइवरशिप है उसमें बेस्ट है, उसमें आपको किसी को नॉमिनी और किसी भी तरीके से वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे भी उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वाइफ का अकाउंट उसमें ज्वाइंट है। तो आप उसका जो भी मतलब आपका कैश है, जो भी मतलब चीजें हैं वो आप उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन कर रहा था। और जैसे फर्स्ट पर्सन चला गया और उन्होंने मतलब ज्वाइंट अकाउंट बनवाया हुआ है, तो वो अकाउंट एज इट इज चलता रहेगा, ना ही अकाउंट बैंक फ्रीज करेगा ना ही कुछ करेगा। तो ये छोटी छोटी बातों से आप काफी चीजों से बच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंपनी का भी ऐसे ही होता है कि प्रोप्राइटरशिप है तो वहां पे बंदा एकदम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें तो सर्टेन है नहीं कि हम इतने साल ही रहेंगे, इतने साल ये देखेंगे। अगर आपका नॉमिनी है, यहाँ पे आपने सेकंड मतलब सर्वाइवरशिप दी हुई है, तो आपकी सब चीजें स्मूथली चलती रहेंगी उसमें बिना किसी के वो किए, बिना ही कंपनी आपको नोटिस देगी ना कुछ, और लाइबिलिटी भी सेम ही रहेगी। जो नॉमिनी है या जो सर्वाइवरशिप में जो प्रॉपर्टी मिली है, बैंक का अगर आपके पास लोन है, अगर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ तो वो एक अलग बात है कि आपका इतने परसेंट माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा सब चीजें। अदरवाइज जो भी सर्वाइवरशिप में है, जो नॉमिनी है, उसकी वो लाइबिलिटी भी एज इट इज रहेंगी और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के प्रति, बैंक के प्रति, वो सब आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इनके इनके अलावा मैं आपको भी बताती हूँ, जैसे एसेट लिस्ट बनवा ले, पेज का मतलब एक पेज पे लिख ले भी ये एसेट है, ये मेरा नाम है, ये बैंक का नाम है, ये एफडी नंबर है, ये एमएफओल्यू है, डीमेट आईडी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, लोकर नंबर है। और ये मतलब एक जगह पे रख लो आप सुरक्षित, अपनी मतलब वाइफ है, बच्चों को या ट्रस्टी बंदे उनको बता दो, ताकि जब भी बताएं, डेप्ट भी बताएं कि कितना क्या डेप्ट है हमारे पास, सिर्फ एसेट ही मत बताना क्योंकि बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो ये पता ही नहीं था। लोन क्रेडिट कार्ड भी बताना, वरना लीगल इसको पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या चीज थी, क्या प्रॉपर्टी, एज पर मतलब डॉक्यूमेंट उनको सब पता होना चाहिए। और जो भी आप मतलब हर साल में, 2 साल में या हर 6 महीने में बैंक में आप अपने नॉमिनी है उसको चेक करवाओ। कई बार ऐसे ही होता है, बैंक की मतलब जैसे मतलब अपडेट होती है या कुछ नाम छूट गया, नाम की आपकी स्पेलिंग भी चली गई, भी मिस्टेक होगी तो उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हर 6 महीने में आप उसका नॉमिनी को जो सर्वाइवरशिप में दे रहे हो, जो आपने बनाया है उसका नाम, स्पेलिंग, उसका जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया वो एक्यूरेट है या नहीं है, क्योंकि देन फर्स्ट पर्सन जब चला जाता है तो इन चीजों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे पुराने पीएफ है, पुरानी एलआईसी है, 10 साल पहले मतलब कोई नॉमिनी बनाया था, वाइफ है, अपडेट करो उसको, क्योंकि कई बार नाम वगैरह में बड़ी दिक्कतें आती रहती हैं।
तो विल बनवाओ सबसे पहले तो ऐसे प्रॉपर्टी की, और उसको रजिस्टर करवाओ। एक बार में मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट मतलब खत्म हो रहा है। विल बनवा ली और हमने रजिस्टर करवा ली, ताकि उसमें दूसरा आदमी जिसको आप नहीं देना चाहते वो आपकी विल को चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में जाके। और सारे जो अकाउंट में नॉमिनेशन है उनको पे करो, मतलब वीकेंड में एक बार कर लो। ये सारे जो एसेट है उसकी लाइबिलिटी की लिस्ट बनाओ और फैमिली को बताओ कि ये एसेट है, इसकी क्या लाइबिलिटी है, किसका क्या है उसको और डिसाइड करो। और प्रॉपर्टी विल से जाएगी या गिफ्ट से, ये भी डिसाइड करो। अगर गिफ्ट से जा रही है तो आप पहले ही बना चुके हो, गिफ्ट डीड बनाते हो तो वो तो आपका काम हो जाता है, क्योंकि गिफ्ट डीड में आपका बनाने के बाद और जो टाइम पीरियड आपको कोर्ट ने दिया है उसके बाद आप अपना कंट्रोल उस पर से खो दो, भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस चीज को। और ये दो काम करने से आपका ये सब चीजें का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, फिर आपको बाद में कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और मैंने ये पहले ही बोला था, क्योंकि आदमी की लाइफ सर्टेन नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। और ये आज ही हम अगर ये सब चीजें सोचते हैं तो हमारी फैमिली थोड़ा टेंशन से बची रहेगी। विल फॉर कंट्रोल, नॉमिनेशन फॉर स्पीड, गिफ्ट फॉर क्लियरिटी, ये तीनों चीज याद रखो। विल फॉर कंट्रोल, आपने किसी प्रॉपर्टी की किसी भी चीज की अगर विल है वो आप कंट्रोल में रहो। नॉमिनेशन फॉर स्पीड, नॉमिनेशन यानी स्पीड, नॉमिनी आपने बना लिया, बैंक में बना लिया, बैंक अकाउंट आपको कुछ हो जाता है तो आपका काम उस स्पीड से चल रहा है। आपके बैंक से जो लेन देन है, जो प्रॉपर्टी का है, जो आप बिजनेस करते हो उसका सब स्मूथली चलता रहेगा। क्योंकि अगर आपका नॉमिनी नहीं है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई कंपनी चला रहे हो, तो एक बार वो चीजें स्टॉप हो जाती है और उनपे 1 से 2 महीना लगता है। और सक्सेशन में तो 3 से 11 महीने लगेंगे आपकी किसी भी, मतलब आपको दोगे गिफ्ट दो, मतलब कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको बनाने के लिए, वहां से अप्रूवल लेने के लिए, फिर आप बैंक में दोगे तब जाके बाद में उसकी आपकी चीजें सब होती है। और गिफ्ट तो फॉर क्लियरिटी, गिफ्ट फॉर क्लियरिटी मीन्स गिफ्ट डीड बनवाई, जो टाइम पीरियड है उसमें सही चल रहा है, पूरा कंट्रोल उसके ऊपर आ जाता चला जाता है जिसको आपने गिफ्ट दिया है, और वो अपने एसेट है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, उसको एज इट इज वो अपनी मतलब विल से अपनी इच्छा से कर सकता है। और इसमें मैं कुछ आपको ये भी बता दूंगी, क्योंकि जैसे है ना, कभी भी सक्सेसर लीगल हेयर्स नहीं होते। लीगल, हर लीगल हेयर सक्सेसर होता है, हर सक्सेसर लीगल हेयर नहीं होता। इसका एक ये भी है, ये मानो आज कोई बंदा है, किसी ने अपना मतलब कुछ मतलब कैश का ही है भी, उन्होंने बोला भी मेरी बेटी है, मेरी बेटी की भी एक बेटी है, 1 लाख रुपए मैं उसको भी देना चाहता हूँ। और उसने जो कैश था उसमें और उसकी जो विल बनाई उसमें उसको मेंशन कर दिया इसको मिलना ही चाहिए। या कोई और है आपका, मतलब आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत और करता है, अगर आपने उसमें लिखा है विल में भी इस एम्प्लॉय को मेरे जाने के बाद ये चीज मिलनी चाहिए। ब्लड रिलेशन तो आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन चीजों में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग, और बहुत मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं और कोई मतलब बन नहीं पाते उनकी बातें। तो इसीलिए सक्सेसर लीगल हेयर नहीं होता, हर लीगल हेयर सक्सेसर होता है। तो सक्सेसर को जो आपने दिया है, जो आपने स्पेसिफिक मेंशन किया है, वही अमाउंट, वही प्रॉपर्टी वही जाएगी, अदर नहीं जाएगा। और सक्सेसर के लिए आपको सिविल कोर्ट में सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, लीगल हेयर का आप तहसील में या पटवारी के द्वारा बन जाता है। और ये आपका 15 से 30 दिन के बीच में आपकी ये सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, ताकि आप उस आगे की चीज को कर पाओ। सक्सेसर के लिए आपको 3 से 11 महीने लगेंगे। सक्सेसर के लिए जो उन्होंने विल बनाई थी उसमें आपका नाम क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी का क्या शेयर दिया हुआ है, आपका मतलब आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र चलेगा, रेजिडेंस आप कहाँ के हो और क्या काम करते थे, वो सारी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज वहां पे देनी पड़ेगी उन सब चीजों के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें आप अपने बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, गिफ्ट डीड, इन सबको सिक्योर कर सकते हो। मान लो कोई भी नॉमिनी भी नहीं है आपका, ना ही प्रॉपर्टी में है ना ही आपका बैंक अकाउंट में है, तो वहां पे फिर सोचते हैं भी जो बैंक अकाउंट है, कैश है, जो भी मतलब आपका म्यूचुअल फंड वगैरह है, तो उसको हम कैसे करवाएं। तो उसमें
सबसे पहले यही होएगा, जो आदमी चला गया उसका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो उसके लीगल एयर्स है उनका एक मतलब आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, पहचान पत्र भी कहते हैं उसको। तो वो आपको बनवाना पड़ेगा, और वही जाके आप बैंक में दोगे, वही जाके आप तहसील में, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड है आपके नाम आनी है, तो वो उसी हिसाब से आएगी। क्योंकि बिना डेथ सर्टिफिकेट दिए हुए अगर आप चाहे 10 साल तक आपकी प्रॉपर्टी पड़ी रही, वो अपने आप कहते हैं ना, अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है, नहीं वो अपने आप नहीं आती। ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी ऐसे ही है, और वो फिर जब पटवारी आता है, मतलब प्रॉपर्टी की मतलब वो करता है, आइडेंटिटी आईडी बनाता है, तो कोई ना कोई मतलब गलत नाम भी उनको दे देते हैं। तो कई बार ऐसे होता है, आपकी 5 एकड़ प्रॉपर्टी, उसमें से एक तो रह ही गई भाई, किसी के भी नाम नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है, नहीं आ रहा। और आपका जैसे अकाउंट है, 10 साल तक आप कुछ भी नहीं देते, तो रिजर्व बैंक ने एक मतलब ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप को खोलो और आप अपनी जितनी भी राशि है, केवाईसी अपडेट करवाओ वहां पे। केवाईसी अपडेट करवाओ, UDGAM पोर्टल बनाया हुआ है आरबीआई ने। भी किसी भी बंदे का बैंक अकाउंट था और एकदम वो मतलब चले गए, वो इंसिडेंटली कुछ ऐसा हुआ, और बैंक अकाउंट में आपको अकाउंट था या पहले पता नहीं था, उन्होंने कुछ अपना अलग से बनाया हुआ था, कुछ लोग अपनी सीक्रेट रख लेते हैं भी, चलो कोई नहीं। तो अभी ये है ना, आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया, उसका नाम है UDGAM पोर्टल करके है। उस पोर्टल पे आप अपनी केवाईसी अपडेट करो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके साथ वो मांगेंगे आपका लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट और सक्सेशन का भी। क्योंकि बिकॉज बंदे को 10 साल हो चुके हैं, आपका बैंक बंद हो चुका है, वहां से आप निकलवा नहीं सकते, आपके पास कोई ऐसा आप पता नहीं था, और उसका एक वैलिड रीजन बना के देना पड़ेगा। अभी कोर्ट में जैसे बनवाओगे, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी आपका ये रीजन बना के दे सकते हैं कि ये रीजन से ये हो चुका था, और इस वजह से रीजन हो चुका था, और इस वजह से हम कर नहीं पाए थे। तो उसके लिए तो उसके लिए हम ये अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका मतलब वो आरबीआई ना टाइम देता है भी, ठीक है ये डॉक्यूमेंट करो, 10 से 15 दिन में। आप ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे तो भी आपका रिप्लाई आएगा, फिर जिस बैंक अकाउंट में है वहां से मेल के थ्रू भी मेल भी भेजते हैं, वो करके आप अपना वहां पे करिए, और आपकी वो प्रॉब्लम भी क्योर हो जाएगी। एनी डाउट किस इस टॉपिक में, अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप बताइए मेरे को। हाँ। ये आपका, हाँ आई जी, हाँ जी। आई थिंक क्वेश्चन आंसर, आप चाहती हैं क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं लोग, ये कहना चाह रही हूँ। हम्म। हाँ जी। Okay, मैडम ma'am. पहले तो नंबर शेयर कर लीजिए, इफ देर इज, आई थिंक वी शुड ऑल बी फ्री टू कनेक्ट विद यू। So if you are okay, you can share your number on chat, because many people will be interested in a, ओके 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 हाँ। और ये ओके। आज के जमाने में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब एडवोकेट कैन बी सिटिंग एनीवेयर, नो, कहीं भी बैठ के आप गाइड कर ही सकते हैं सबको, वॉट एवर बी और हाँ चार्ज। हाँ, वो तो है सर के हाँ। ऊपर। ये आज ये एक और ये जो हाँ जी सर, बताइए। प्रोबेटिंग ए विल, मतलब इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दीजिए ना। कई सॉरी स्टेट सर। में कई कई स्टेट में प्रोबेट करानी पड़ती है अगर वो अनरजिस्टर्ड विल है। हम्म बिकॉज कोविड के बाद क्या हो गया था कि लोगों ने कई विल्स हाथ से लिखना शुरू करके और रख दी। तो उनमें फिर कॉम्प्लिकेशन होता है क्या, जो अनरजिस्टर्ड और हाथ से लिखी हुई विल्स नहीं, होती हैं? उनमें से देखो सर, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता। जैसे कोर्ट है ना, कोई भी आपने विल करवा दी और विल को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो कोर्ट का हर स्टेट का प्रोसीजर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का लॉ है ये। भी आप उस विल को कोर्ट में कहीं पे भी लगाए, मतलब 30 डेज आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। अभी इस विल के लिए अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो देन आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी विल रजिस्टर्ड है और आपने प्रोबेट करवा चुके हैं, तो जो चैलेंज करेगा तो वो भी मतलब कर नहीं पाएगा। अगर आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो चैलेंज करेगा भी, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ इस विल में, मेरा कुछ भी नहीं दिया गया,
तो देन उसको कोर्ट एक्सेप्ट भी करता है, और वो फिर आपका थोड़ा सा प्रोसीजर आपको पता ही है, चलता ही है कोर्ट का। तो डिस्प्ले कहाँ करते हैं वैसे कोर्ट? डिस्प्ले कोर्ट के मतलब जैसे सपोज करो आप जहाँ पे भी रहते हो, आपने एक बिल करवाई और एग्जीक्यूट करवाने चले गए, आपकी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास चली गई, तो वो जो उसका ऑफिस होगा उस ऑफिस के बाहर ही करते हैं। या उसके बाहर ही करते हाँ, उसके बाहर ही करते हैं। ये देखो सर, जो लॉ है रूल है सब सब तो अप्लाई भी नहीं होते, सब बुक्स में ही लिखे होते हैं। तो जैसे आपने किया, कुछ लगा देते हैं, कुछ नहीं लगा देते, कोई चैलेंज करने आता है, जिसको चैलेंज करना है तो वो तो पहले से ही तैयार रहेगा ना, भैया जब भी बिल को एग्जीक्यूट करवाएगा मैं उससे पहले चैलेंज करूंगा। ऑलमोस्टली कोई रेयर केस होता है, एक्सेप्शनल होता है। लेकिन अगर आप बिल को रजिस्टर करवा लेते हो तो आप उस आपके बिल को चैलेंज नहीं करेंगे, कोर्ट जल्दी एक्सेप्ट करेगा। उस पे जल्दी से दूसरे का मतलब वो लेगा नहीं, चैलेंज नहीं लेगा, भी ये रजिस्टर हुई हुई है और आप पहले कहाँ थे। हैं। क्वेश्चन ये भी उठता है, जो नॉमिनी बैंक में होते हैं, हम्म। तो दैट नो वो बैंक का नॉमिनी भी बाय डिफॉल्ट ओनर नहीं बनता जो बैंक में कैश है। बाय डिफॉल्ट ही सर 100% ही नहीं बनते, ये सबके मतलब बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। भी नॉमिनी बना दिया तो क्या वो ओनर ही बन जाएगा? लेकिन उससे पहले आपने, आपका बैंक अकाउंट है, आपके करोड़ों रुपए हैं उसमें बैंक में, और आपने नॉमिनी बना दिया। आप चलो एक बिजनेस कर रहे हो, कंपनी का काम कर रहे हो, उसमें आपने कोई बंदा रख लिया, भी ठीक है मैं ये नॉमिनी है, मैं नहीं हूंगा तो ये चेक साइन करके देगा, ये इतना कैश निकलवा सकता है, इस पर्पज से हम कर लेते हैं प्रोप्राइटरशिप वगैरह में। भी ये मैं नहीं हूं तो ये करके देगा। तो अगर आपने विल बनाई हुई है, विल में लिखा हुआ है मेरी कंपनी है, मेरा उसमें अकाउंट है, मेरा नॉमिनी ये है, लेकिन मेरा ये लीगल एयर्स नहीं है, तो वो नॉमिनी वहां से आपके मतलब काम को चला सकता है, पैसे मतलब निकलवा सकता है। तो आपके जो लीगल एयर्स हैं वो क्लेम करके वो पैसा ले सकते हैं। नॉमिनी कभी मालिक नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये गलतफहमी बहुत है सबको कि भाई बैंक में सभी नॉमिनी की डाल है, दिया है। हाँ क्योंकि जी। देखो सर हमें पता नहीं है, मतलब आम पब्लिक को, मतलब एक लेमैन की तरह, लो लो सबको तो पता है, लो का ये पता भी नॉमिनी बना दिया तो मालिक वही है, पैसे वही ले लेगा। लेकिन नहीं, नॉमिनी आपका टेम्परेरी है, आप काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको नॉमिनी की जरूरत है, क्योंकि आपकी वाइफ वहां पे हर टाइम नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते, वो दूसरे काम में लगे हुए, हमने ऑफिस हायर किया हुआ तो उसमें एक बंदा रखा है। नॉमिनी हमने उसको इसलिए बनाया कि उसको चेक देना है, उसको वहां से निकलवा के सैलरी देनी, उसमें पैसे जमा करवाने हैं, ये चेक दे दे, तो सर वो इस पर्पज से होता है मेन तो। लेकिन उसका देखो मोटिव लोग अलग ही निकाल लेते हैं। लेकिन इसकी ये रेमेडी है, आपका नॉमिनी है तो वो ओनर नहीं है, नॉमिनी है। नॉमिनी अगर आपने अपने बेटे को भी बनाया, आपके 1 करोड़ रुपए हैं, आप चले गए, तो आपके 2 बच्चे और हैं, तो वो नॉमिनी से अपना क्लेम करके जो हिस्सा बनेगा, 1/4 हिस्सा बन रहा है तो 1/4 हिस्सा आएगा, वो 1/5 बन रहा है तो 1/5 आएगा। और जो भी बैंक में ऐसे बंदे को नॉमिनी बनाता है वो एक एफिडेविट बनवाए, एफिडेविट लिखाए ये नॉमिनी है, सिर्फ मेरा वर्कर है, काम करेगा, मेरे को मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, लेकिन इसका शेयर कुछ भी नहीं है। दोनों दोनों पार्टी के साइन करवाइए आप, आपके भी और उनके भी, तो आपका ये चीजें थोड़ी सी सिक्योर रहेंगी, सेफ रहेंगी। और ये जो अनरजिस्टर्ड विल कोई लोगों ने जो लिखते हैं, हम्म। उनकी कुछ वैलिडिटी रहती है? अगर वो मतलब फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में लिख दिया आपने, है ना, उसके देखो, बाद उसको पांच टच ही नहीं साल में किया। बिल को अपडेट करवाना ही चाहिए। अच्छा। आज हमने करवाई तो हम 5 साल से ज्यादा जी रहे हैं, क्योंकि पहले करवा भी देते थे लोग, 10-10 साल पहले भी करवा देते थे, ये तो अनसर्टेन चीजें हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप 5 साल में है ना उसको अपडेट करवाइए। और और अगर वो स्टैम्प पेपर पे नहीं लिख के लिखी हुई है, ऐसे सिंपल पेपर पे टाइप करके रखी है तो? सिंपल पेपर पे टाइप करके रखी हुई है सर, वो देखो इतना मतलब इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज क्योंकि आपने सिंपल पेपर पे रखी हुई है, आपकी विटनेस के साइन है, अगर विटनेस आपके अलाइव हैं तो आप उसको कर सकते हो, भी वो जाके बोले हाँ मेरे सामने किया था और ये सब है, तो वो तब वैलिड है, वैसे नहीं है, वैसे कोर्ट उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब यानी आपने गवर्नमेंट के सामने की, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी आप खरीदते हो और आपकी बिल पे लगी हुई है 500 रुपए की, 100 रुपए की, यानी गवर्नमेंट जानती है इस बारे में, नॉलेज है भी, उन्होंने ये बिल के लिए
स्टैम्प पेपर परचेज किया, तो जब भी आप स्टैम्प पेपर परचेज करते हो आजकल तो फोन से ही आता है, ओटीपी भी देना होता है और आपके नाम से भी आता है, तो थोड़ा सा सही रहता है। ये अच्छी जानकारी है कि मतलब स्टैम्प पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब स्टैम्प पेपर, या हाँ, फिजिकली लाना पड़ता है अब आजकल जाके? जैसे मेरे ऑफिस में आते हैं तो मैंने वो साइट ली हुई है, तो उसमें से जैसे मैं स्टाम्प पेपर डाउनलोड करती हूँ, आपको ही चाहिए 100 रुपए का स्टाम्प पेपर, तो आपके नाम से ही लेंगे, हम आपका ही कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे, पेमेंट भी आपसे ही करवाते हैं, कि ऑनलाइन होती है उसमें पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो उसमें सर वो अपने आपके नाम से बन रहा है, और आपने किस पर्पज के लिए क्या मोटिव से लिया है, तो उसमें ये भी हमें मेंशन करना पड़ता है, बिल के लिए ले रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट के लिए ले रहे हैं, रजिस्ट्री के लिए ले रहे हैं, तो ये सब ऑल चीजें है, डिजिटल है अभी तो काफी। और स्टैम्प पेपर के एक ही साइड लिखा जाना चाहिए, दोनों साइड सॉरी लिखना, सर, दोनों साइड टाइप करना चाहिए कि ओनली एक ही विल? साइड करना चाहिए। हर पेज पे ना? हर पेज पे आपको, आप बिल बनवा रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो वैसे तो एक ही साइड पे करोगे तो ठीक रहेगा, कई बार प्रिंटर से या कुछ इंक का कुछ ऐसा भी मतलब फॉल्ट हो जाता है, तो कुछ वर्ड है आपके दिखते नहीं है, क्योंकि जहाँ पे चैलेंजेस लग रहा है, तो आपको आप उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा क्लियर रखिए। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हर कोई इग्नोर करता है, और हम ये बहुत बेसिक सारे। है, हाँ जी, हाँ जी। बेसिक है, छोटी छोटी बातें हैं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से डिस्प्यूट काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, आपने बहुत काम की बातें बताई। इवन ईमेल, फॉर एग्जांपल ईमेल पासवर्ड, उसको भी आपको बिल में लिख देना चाहिए। मतलब शायद देखो, आप ये, है ना, ये हाँ हाँ पासवर्ड्स वगैरह जो, यानी उसमें आने चाहिए, यानी है उसमें हाँ, बिल्कुल आने चाहिए, आप अपना नाम, पासवर्ड, ईमेल, आपने जो भी देखो, आप जो भी काम कर रहे हो लिखने में कुछ नहीं जाता, आजकल मतलब थोड़ा डिजिटल ज्यादा हो गया, लोग फोन पे ही सारा काम करने लगे, भी फोन पे ही रख ले, नहीं, फोन पे नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट बनाइए, प्रॉपरली फाइल बनाइए, क्योंकि कहते हैं ना, पहले वाले बोलते थे, आप पता नहीं इस लैंग्वेज को समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, हरियाणा से हैं हम, तो ये बोलते थे, बही मतलब बही खाता, जो लिखते थे ना, हाँ जी, कि हाँ जी, आपने हाँ कितने क्या लिए, हाँ। वो सही, मतलब सही आदमी भी गलत हो सकता है, लेकिन लिखी हुई चीजें आपकी कभी गलत नहीं होंगी। और लो, मतलब आपके मतलब डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई है, आपके एविडेंस पे बिलीव करता है सर, वर्बली कभी बिलीव नहीं करेगा, आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने उसको ये बोला था, उसको ये बोला था, आप लिख के रखिए, एक एक चीज लिख के रखिए, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो उस पे आप लिख रहे हो, दूसरी पार्टी को दे रहे हो, तो उसकी साइन करवा लो, ताकि आपको मतलब बहुत सारी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अगले बंदे को भी, उसको भी, फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहो, कोर्ट कभी भी आपको एक प्रॉब्लम को एक ही दिन में क्योर करके नहीं देगा, क्योंकि तो ये हमारे जुडिशरी का सिस्टम है, एक जज के पास 200 फाइल होती है, 5 मिनट भी नहीं दे पाता, वो एक आदमी की प्रॉब्लम को कैसे क्योर करेगा। नहीं करेगा। 150 से 200 फाइल होती है, तो 150 से 200 फाइल होती है, आपका मैटर 5 साल से चल रहा है, उसको 5 साल पुरानी फाइल को देखना भी पड़ता है, अगर कोई भी ऑर्डर अगर वो गलत गलत कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो आगे खड़े हुए लॉयर तो चैलेंज कर सकते हैं ना सर उसको। यस। मैंने आपका केस लिया, मेरे को तो आपके केस की प्रॉपरली जानकारी, उनके पास तो 150 फाइल है, तो एक सही। फाइल को कभी आप नोटिस करोगे, जैसे जजमेंट आनी होती है, तो मैजिस्ट्रेट लगातार कंटिन्यू आपको तारीख देगा, कि एक हफ्ते के बाद दे रहे हैं, एक हफ्ते, क्योंकि वो उसी फाइल को स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे, और आगे को डेट देते रहते हैं, हम गए 1 महीने की डेट दे दी, 2 महीने की डेट दे दी, 15 दिन की डेट दे दी, फिर जाएंगे फिर डेट दे, क्योंकि हमारा मैटर अभी पिक पे हुआ ही नहीं है, ना वहाँ क्रॉस एग्जामिन हुआ, ना एविडेंस लिए, कुछ भी नहीं लिया, तो इसीलिए ये जरूरी होता है कि आप अपनी सारी चीजें अगर लिख के रखोगे तो बेस्ट रहेगा, और आपको कोई कोर्ट में चैलेंज करता है तो उसके लिए भी आपको मतलब जाके सीधा देना, इधर उधर नहीं, आपको कोई मिसलीड नहीं करेगा। बहुत सारे लॉयर भी कहते हैं, लॉयर, मैं भी लॉयर हूँ, ये सुदेश शर्मा सर मिले थे, उनकी वजह से मैं आज ये एक प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रही, क्योंकि लॉयर तो हर लॉयर ये भी कहेगा, नहीं नहीं सर आप देखना मैं ये करवा दूंगा, मैं भी करवा दूंगा, ऐसे नहीं होता सर, वो बड़े आदमी को तो बहुत चक्कर कटवाते हैं। हाँ जी, हाँ। और एक ये जो सिस्टम चला हुआ है, नोटरी के यहाँ जाके सिग्नेचर करना, अपनी अनरजिस्टर्ड विल के ऊपर, वो सही रहता है? नोटरी के वहां जाके रजिस्टर करो, वो सही नहीं रहता,
अनरजिस्टर्ड विल मतलब नोटरी करवा ली विल की, वो रहेगा आपका। लेकिन अगर आपकी विल गलत है, नोटरी वाले ने भी मतलब नोटरी का ठप्पा मार के दे दिया, और मैं उसको चैलेंज कर सकती हूँ कोर्ट में, बकायदा नोटरी वाले को भी कोर्ट में आना पड़ेगा। हाँ नहीं, लेट अस अज्यूम की चैलेंज नहीं हो रही है कोई विल, और हम्म। आपने एक हैंड रिटन या मतलब टाइप विल सादे पेपर पे लिखी हुई है, तो हाँ, आज नोटरी करवा ली तो वो एग्जीक्यूट हो सकती है। जैसे आपने हमने अपने बच्चों की कर दी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन करने वाला ही नहीं है, बिल भी जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने नोटरी करवा ली तो वो एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर तो आपने गलत बनाई, गलत के लिए ही लोग बना हुआ, अगर आपने गलत कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, किसी और की बना दी और बिल बना दी और नोटरी करवा लिया, और आप एग्जीक्यूट करवाने जाते हो, कोर्ट डॉक्यूमेंट तो निकालेगा ना किसका क्या है, तो उसके बाद वो नोटरी वालों के कोर्ट में बुलाते मतलब आप हम ये कंक्लूजन ये निकालें कि खाली सिर्फ एक सादे पेपर पे टाइप अगर आपने कराया हुआ है तो उससे ज्यादा बेटर है कि स्टैम्प पेपर पे करा लो हैं। हाँ मतलब, सर, स्टैम्प पेपर पे हो। और फिर उससे भी जो एक नेक्स्ट स्टेप है कि उसको नोटरी भी करा लो साथ में, ऐसा। नोटरी भी करवा लो, हो सकता है तो रजिस्टर्ड भी करवा लो, बहुत कुछ ज्यादा फीस नहीं लगती वहां पे। हाँ, पर रजिस्टर्ड में मैडम प्रॉब्लम ये आती है कि फिर वो पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, और फिर आपको अगर बाई चांस 2-3 साल 4 साल के बाद कुछ चेंजेस करने पड़े तो। कर सकते हो आप, हाँ जब वो। तक आप हो, आपने बिल रजिस्टर्ड भी करवाई है, आप बिल को पूरा जीरो कर सकते हो, मेरे को नहीं करानी। आप बिल में चेंजेस कर सकते हो, सर मेरे को ये चेंजेस करना है, मैंने ये प्रॉपर्टी बाद में परचेज किया है, ये प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, तो उसमें ये हिस्सा लिखा हुआ था, तो सर वो सारा चेंज हो जाता है। तो मैडम ये होता क्या है ना कि लोग फिर बार बार जाना बड़ा है प्रिफर नहीं करते हैं, ये हमने देखा है कि लोग बोलते हैं यार वहां फिर जाना है, फिर किसी के सामने आप वेट, वो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना आपको फिर से। हाँ सर, कोर्ट में जा, रजिस्टर्ड विल के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड विल आप अपने घर में रखो, दूसरी बनवा लो। हाँ दूसरी बनवा लो मतलब, हाँ वो सही कह रहे हैं आप, तो वो एक हाँ। कन्वीनियंस थोड़ा अनरजिस्टर्ड में ही ज्यादा हो रही है लोगों को, ये मैं देख रहा हम्म। हूँ। हाँ जी, कई हाँ बार जी। ये रहता है ना सर, आपस में ही डिस्प्यूट है, तो इसलिए सोचता है बंदा भी रजिस्टर्ड ही करवा देते हैं। हाँ, जहाँ डिस्प्यूट के चांसेस बहुत डिस्प्यूट ज्यादा है, हैं। देखो वो मतलब कहते हैं ना, एक्सेप्शन होता ही है हर जगह, लेकिन ये हम्म। तो नहीं है 100 लोग करवा रहे हैं तो 99% की डिस्प्यूट, 99% सही होता है, 1% डिस्प्यूट का होता है। हाँ, तो डिस्प्यूट तो ऐसे ऐसे लोगों में है, हम देख रहे हैं अपने सर्कल में कि लोग एनआरआई हैं और अरबों रुपया उनके पास है, लेकिन 10 लाख रुपए के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं बैंगलोर में आके वो लोग अपने हाँ, वो रिश्तेदारों तो से। है ही सर। देखो सर, पब्लिक का क्या है, एक कॉमनली बात बता रही हूँ, मतलब लो से भी हटके, क्योंकि किसी अगर मैं बोलूं सर आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे को आप दे दो थोड़ा सा, मेरे को जरूरत है, मेरे बच्चों की एजुकेशन ही करवानी, तो बंदा नहीं देगा। आप जा रहे हो दान करने के लिए, मैं इतने करोड़ दान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, और या एक आप गरीब आदमी को दे रहे हो, क्योंकि दुनिया बेचारा बना के चीजें देने ज्यादा पसंद करती है। सही बात है। ये सब चीजें हैं, अगर आपके पास अरबों रुपए हैं और आप 10 लाख की प्रॉपर्टी पे मतलब फाइट कर रहे हो, और वो भी आपका कजन ब्रदर है, तो छोड़ देना चाहिए। मैडम नहीं आपके छूट, लिए वो मतलब क्या वैल्यू रखती है। नहीं पर आप भी देखती होंगी ना कि ऐसे ऐसे लोग आके यानी मैं मतलब कई बार आपको झटका लगता है देख के कि यार इनको कमी क्या थी, यूएस से आके वो लोग फाइट कर रहे हैं हाँ। अपनी कुछ पुरानी प्रॉपर्टी के लिए कि मेरा भी शेयर है 10 लाख का इसमें, जबकि वो हम्म। वहां पे मतलब अरबों की प्रॉपर्टी लेके बैठा अरबों हुआ की है। और रहना भी नहीं है, शेयर है तो शेयर तो रहता ही रहेगा ना, उसको लेने से शेयर थोड़ी हो जाएगा। हाँ हाँ। लेने से तो शेयर नहीं होएगा ना। आप ये बताओ, एक फैमिली है, उसमें मानो 4 लोगों का हिस्सा है, तो चारों का है भाई, तुम ले लोगे, ले लोगे तो क्या पर्टिकुलर वहां पे बोर्ड लगाने से हिस्सा थोड़ी हो जाएगा आपका, वो तो है ही। यस। यस। अगर जब आप ये क्लेम नहीं करोगे तो ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब फैमिली के लोग हैं, इंसान, वो यही बोलते हैं हाँ उनका भी हिस्सा था, उनका भी हिस्सा ही बताते रहते हैं। तो ये बहुत तो सर अच्छी। देखो, किसी के माइंड का अपन कुछ नहीं कर सकते, क्या पता एक पैसे के लिए तो वो कोर्ट क्लेम कर देगा, और करोड़ों के लिए कुछ नहीं करेगा। यस। ये सही सब कह। चीजें तो चलती रहती हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है बड़ा कॉमन सा जो इसका बड़ी आर्गुमेंट होती रहती है, ये जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने हस्बैंड का नाम ऊपर हो गया, वाइफ का नीचे हो हम्म। गया, हम्म। और शेयर होल्डर का नाम नीचे लिखा रहता है कुछ कुछ मतलब,
हाँ हाँ, बच्चे हैं जैसे आपके उसकी तो। क्या लीगल अहमियत है, यानी फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर, मतलब फर्स्ट नेम सेकंड नेम, उसके बाद फिर नीचे नॉमिनी या शेयर होल्डर ऐसा भी रहता है ना प्रॉपर्टी हाँ के हाँ हाँ, कागजों में। रहता है सर, रहता है। वो थोड़ा देखो सर, समझा उसमें दीजिए। जैसे मान लो आप और आपकी वाइफ हैं, और आपने कोई प्रॉपर्टी, मान लो प्रॉपर्टी आपकी है, अगर मान लो लैंड है, मतलब सक्सेशन में आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है, आपके फादर से आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो उसमें तो मतलब ये भी है, अगर आप ना भी देना चाहो अपने बच्चों को, मान लो आपने बोला नहीं मैं मेरे बेटे को नहीं दूंगा, ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, अगर सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिली हुई है तो आपके बेटे राइट रखते हैं, वो आपके जिंदा आप अलाइव हो तब भी नोशनल पार्टीशन बोलते हैं इसमें, सेक्शन 6 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है, भी वो अपना हिस्सा ले सकते हैं आपसे। अगर आप ये चाह रहे हो ना ना मैं नहीं दूंगा, ये कामयाब नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी सक्सेशन की होनी चाहिए, देन इसमें फिर आता है एक प्रॉपर्टी आपने खुद परचेज की है और आपकी ही नाम है, वो आपकी इच्छा है, आप जिसे देना चाहो। मान लो आपने आपकी वाइफ का नाम लिखा हुआ, नीचे शेयर होल्डर भी लिख दिया आपने, तब परचेज की थी प्रॉपर्टी, और आज आपका मन कर रहा है मेरे को इनको नहीं देनी, तो आप उनको हटवा सकते हो, वो क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, रजिस्ट्रेशन में जॉइंट नाम है ना, हाँ, तो मतलब तो फर्स्ट वाले की डेथ के बाद सेकंड ऑटोमेटिकली ओनर नहीं बनता है, या बन जाता है सेकंड नहीं, नेम? बन जाते हैं, बन जाते हैं। आपने सेकंड, आपका, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो आपके नाम है, आपने उसमें नाम डाला हुआ है 3 का, तो वो 3 के 3 मतलब अगर ऑटोमेटिकली जाएगी तो वो, जैसे आपकी वाइफ आपके 2 बच्चे, तो 3, उसके 3 शेयर होंगे, 1/3 1/3 1/3 में जाएगी, और उसमें कोई भी एक बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता भी मैं इसको नहीं दूंगा, बिकॉज जिसने प्रॉपर्टी परचेज की है उसका राइट बनता है वो किसको दे और किसको ना दे, वो उस टाइम किसी का जिसका नाम डालेगा वो उसी का होगा, रजिस्ट्रेशन में नाम डालेगा। और आपने रजिस्ट्रेशन में नाम डाला है और बाद में आप ये कहते हो कि ये प्रॉपर्टी मैं नहीं देना चाहता, तो आप कोर्ट में क्लेम करके आप उनका नाम हटवा सकते हो। हाँ वो ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ये था कि भाई फर्स्ट नेम के जैसे जो फर्स्ट ओनर मैं हूँ, तो मेरी डेथ के बाद जो सेकंड नाम है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में, भाई हम्म। ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो सकती है या फिर जाके हाँ, बाई ऑटोमेटिकली होती है सर वो, अच्छा सेकंड ऑटोमेटिकली होगी, हाँ सेकंड ओनर बाय बाय ऑटोमेटिकली होगी। ऑटोमेटिक हो जाती है, हाँ, ठीक। ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसमें फिर एयरशिप। ऑटोमेटिक का मीन्स ये है भी, जैसे आपको डेथ सर्टिफिकेट तो उस बंदे का देना ही पड़ेगा, वो जो चला गया। हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ी पता है भाई कौन आदमी चला गया और हाँ कौन रह रहा हाँ। है, आप डेथ सर्टिफिकेट दोगे तभी तो उसकी मदद कर प्रेजेंट है या नहीं है तभी पता चलेगा, तभी वो आगे ट्रांसफर करेगा। जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देने ही पड़ेंगे, और आपको उसमें कुछ नहीं करना। हाँ जी, हाँ नहीं, ग्रेट ग्रेट। हाँ तो आप, आई थिंक एनी अदर क्वेश्चन, इफ देर इज एनी अदर क्वेश्चन, बाकी तो मैंने बहुत सारे पूछ लिए। और किसी को कोई बात नहीं क्वेश्चन है सर, तो आप। दे कैन, हाँ, दे शुड बी फ्री टू आस्क, क्योंकि ये तो ओपन फोरम है मैडम, ये तो 4 साल से डिस्कशन है ना। तो वी आर ओके ओके लकी सर। कि आज आपने एग्री किया यहाँ पे आने के लिए, तो डिस्पाइट ऑल योर, नहीं तो नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं हाँ जी आगे हाँ भी जी। नेक्स्ट भी अटेंड करती रहूंगी। सो अक्षता, यू कैन इनवाइट क्वेश्चंस नो। Yes, sir. Thank you so much. And also, thank you, Maya, ma'am. ओके My मैम, question वेलकम। is there. Actually, it is a very silly question, I think. Uh, जो अंबानी मीन्स नॉर्मली जो बिलियनर्स और मिलियनर्स होते हैं, हम्म। मैंने कहीं पे सुना है कि वो अपनी विल नहीं बनाते, दे ट्रांसफर दे ऑल मनी टू द ट्रस्ट। क्या हम्म। ये सही है? और अगर है तो क्यों? मतलब ट्रस्ट को क्यों देते हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं देते? देखो, अभी मैंने सर ने पूछा था तभी ये बताए थे, जो प्रॉपर्टी आपने मतलब अर्न किया है, सेल्फ अर्न किया, भी आप किसी कंपनी, आप खड़े हुए आपने 100 रुपए लेके एक कंपनी बनाना शुरू किया और उसको इतना बड़ा बिल्डअप कर दिया और आज आपका मिलीनियर हो, आप काफी अच्छा कर रहे हो, आपकी विश है, आप, आपकी इच्छा है, आप जिसको देना चाहो दे सकते, वहां पे बच्चे क्लेम नहीं कर सकते। जो आपकी प्रॉपर्टी सक्सेशन में है, सक्सेशन के थ्रू आई हुई है, जैसे पापा है, पापा को प्रॉपर्टी अपने दादा से मिली हुई है, उसमें हम क्लेम कर सकते हैं। वो उनकी एक अपना मतलब
विचारधारा होती है भी वो कहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, उन पे आप कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब अगर उनको ट्रस्ट को देना है पैसा तो वो दे सकते हैं, पर अपने बच्चों यस। को नहीं दे सकते। हाँ, नहीं दे सकते बच्चे को। उनकी मर्जी है, मैंने बताया जो काम आप कर रहे हो, मतलब कोर्ट ये नहीं मानता भी आपने, चलो ये तो ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस, आपकी शादी हुई, दो बच्चे हो गए, आप एक मतलब इंडिया के सिटीजन हो तो पूरा देश आपका है, ओके। पूरा कंट्री आपका है, आप उसमें आपकी प्रॉपर्टी से आप एक मंदिर बना रहे हो, उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, चलो एक लड़का है वो काम नहीं करता, हम उसका घर भी नहीं बना रहे, तो कोर्ट में क्लेम तो नहीं कर सकता ना, ये मंदिर बनवा रहा है, मेरा घर क्यों नहीं बनवा रहा है, मेरा बाप है। तो कहेगा भाई हाँ ठीक है, तेरा बाप है, उसने पैदा किया, बड़ा किया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, भी सारा काम आपका ही करेगा ये। 18 साल के बाद इंडिया में भी नहीं है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम टू सॉल्व माय क्वेरी। एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? या पीपल शुड आस्क क्वेश्चन यार, ऐसा मत सोचो सब क्या सोचते हैं ना कि हमारे साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम अचानक आती है और फिर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और आप बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं सब लोग। यस सर, इट्स रियली ट्रू। और हर फैमिली में कुछ ना कुछ मालूम है आपको, अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो ऐसे डिस्प्यूट चल ही रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ चल रहे हैं कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यस सर। सो इफ देर इज नो अदर क्वेश्चन, you can just, I think we can. यस सर, एज आई सी देयर इज नो क्वेश्चन। सो मज का मतलब मैडम ने सब बहुत अच्छे से, नहीं इनकी स्लाइड्स बहुत अच्छी थी, उसमें सारा इंफॉर्मेशन था बहुत अच्छे से। एंड खाली ये ईमेल का एक रह जाता है मैडम, ईमेल का क्या विल में लिखना चाहिए कि पासवर्ड्स वगैरह? किसमें सर, किसमें पूछना चाह रहे हो? ईमेल एंड क्रिप्टो एंड डेबिट कार्ड की पिन और ये सारी चीजें किसमें लिखना चाहिए? विल में कुछ हाँ, आपने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए वैसे तो। लिखना मेरा चाहिए। ये, हाँ ये मेल है, और ये मेरा इतना मतलब डेबिट कार्ड है, ये वो है। अगर आप विल लिख रहे हो, विल लिख रहे हो तो आप उसमें डेब्ट भी मेंशन करो। अगर मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, मैंने 5 करोड़ का लोन लिया, जो मेरी प्रॉपर्टी लेगा तो सर वो लोन भी तो पे करेगा ना। हाँ वो ठीक है, पर ये हाँ। मतलब ये चीजें थोड़ी सी आजकल वो पीआईआई एक्ट में पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, पीआईआई एक्ट भी आया है ना, तो उसमें ये पासवर्ड और ये जो नंबर है आधार कार्ड वगैरह के, ये सब उसमें आने चाहिए क्या सारी चीजें? ईमेल में? नहीं नहीं, विल में। विल में? विल में सर देखो लिख सकते हो, क्योंकि विल बनवा के हम अपने पास रख रहे हैं। भी जैसे आप मतलब आधार कार्ड का नंबर है, आपने जैसे भी पासवर्ड लिखा, पासवर्ड भी आप लिख सकते हो भी। अगर हम बाय चांस कुछ भी हो जाता है तो हम क्या पासवर्ड कैसे बताएंगे, और ये चीजें ओपन करने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम्म। तो मतलब ये ईमेल वगैरह भी ट्रांसफर हो जाता है पूरा, मतलब है ना हाँ। ये? अच्छा, वो कि जो सक्सेसर है वो उसको आगे आप ऑपरेट कर सकते। सक्सेसर है, वो आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट को भी कंटिन्यू कर सकता है वो, अगर उसको करना चाहे भी, हाँ मैं इसका सक्सेसर हूँ, मैं इसका लीगल एयर्स हूँ, और मैं इस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हम्म। देखिए मतलब बहुत नई जानकारी दी है आपने एकदम, मतलब हाँ जी, ठीक है। सो आई थिंक मैडम ऑल्सो इज नाउ, काफी टाइम दे दिया उन्होंने, सो वी कैन थिंक ऑफ कॉलिंग, थैंकिंग हर एंड वाइंडिंग इट अप। Yes, sir, of course. Thank you, Sudesh, sir. Thank you, Maya, ma'am, for your insightful presentation on how to ensure smooth transfer of cash and asset to legal heirs. Your valuable knowledge and practical guidance made today's session highly informative and beneficial. We sincerely appreciate your time and contribution. Thank you so much, ma'am. Moving forward, ICS plays to provide you all its research and development, integration management system,
QMS, EMS, and OHSMS. Excellence in Education Management, ISO Made Easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. Our recent publications: Urja Thermal, Oil and Gas, Nuclear, Jung Se Jung Tak, Fight with Rush. For reading any of the above books, please contact Ms. Sushma. We officially close today's meet. Thank you for being a part of Sadgun Sam. Feel free to contact us. Thank you.